Morning, BCom second year students. Welcome on YouTube channel of Government College Devli, which is CCE Raj GC Devli. We are studying paper first, corporate accounting, and today we are going to discuss this chapter, which you can read on your screen: holding companies and subsidiary companies, consolidated financial statements. In previous video, we had started this chapter and learn how to draft out consolidated financial statement of both holding and subsidiary companies. Also, I told you that what is holding company and what are its subsidiaries. And I would also like to recall you that I discuss to calculate minority shareholders interest, who are minority shareholders and how to calculate their interest also. I hope you had watched earlier video on this topic, otherwise you will not get to understand this video. So if you haven't seen earlier video, you should go first on channel YouTube playlist on this YouTube channel from BCom, namely BCom second year, ABST BCom part second, namely, and you should watch previous video of this chapter on this topic. So let's start again. Next question on this topic, I would try to make you understand this topic and how to make consolidated financial statement through a different illustration. In last video, I told you, I discussed with you a simple question, but now in this video I would like to discuss with you consolidated financial statement on advanced level. Okay, so here is the question. The following are the balance sheets of P Limited and its subsidiary Q Limited as on 31st March 2016. Here is your balance sheet of P Limited and Q Limited. P Limited is holding company and Q Limited is its subsidiary company. In balance sheet, you can see that P Limited has 50 lakh of share capital and 20 lakh as Q Limited has 20 lakh capital, out of which P Limited has issued 24 lakh. I hope you got from where I am reading. 24 lakh is its issued capital, and in Q Limited it is 11 lakh divided by 10, because equity shares of both companies are at the rate rupees 10 each, fully paid. Now current liabilities, both companies have their individual creditors, that is current liabilities. Here 7 lakh 50 and 6 lakh 80. So this side is shareholders fund, or you can say liability side. Now move forward to asset side. See, tangible fixed assets, both companies have, P and Q Limited have different tangible fixed assets of 12 lakh 50,000 and 13 lakh 95,000 respectively. B point in non-current assets is non-current investment. Here I am reading non-current investment, that means investment 99,000, equity shares in Q Limited. This line I am reading about here. Investment 99,000, equity shares in Q Limited purchased on 1st April 2015. Now this means that P Limited has 99,000 of shares in Q Limited. That means P has invested in Q Limited. That is why P is holding company and Q is its subsidiary company, and this investment is of 99,000 equity shares. Okay, now when you got this amount of on equity share from this data you will able to calculate minority shareholder and company's shareholding. How? I will tell you later. First read out this balance sheet. Current assets, it is sundry current assets of both companies are 11 lakh 10,000 and 6 lakh 5,000. Okay, now look at this balance sheet carefully. Afterwards I will take you to additional informations. Here are additional informations. On 1st April 2015, profit and loss account of Q Limited showed a credit balance of 98,000, and on that date plant and machinery of Y Limited as revalued by X Limited at 20% above its book value, but no adjustment of revaluation was given effect in the books of Y Limited. No dividend was distributed either companies during the year 15-16. Now, in additional information, you were informed that
Q Limited has credit balance of 98,000. I am reading here. So you have to keep in mind this amount 98,000 while calculating consolidated profits. And also plant and machinery of Y Limited got revaluation and it shows a 20% hike, means its book value is increased by 20%. So you have to show these adjustments in consolidated statements. एंड ऑल्सो देर इज़ नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ सुन रहे हैं जिन, तो आप 1 अप्रैल 2015 को, ये आपके नीचे पूरी लाइन जो है हिंदी में भी लिखी हुई है, 1 अप्रैल 2015 को क्यू लिमिटेड के लाभ हानि खाते में 98,000 शेष जमा थे. ठीक है. और 20% अधिक आपको पूर्ण मूल्यांकन पर प्लांट एंड मशीनरी का पता चला. तो आप इन दो एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र तैयार करना है. ओके. यह मानते हुए कि दोनों कंपनियां प्लांट एंड मशीनरी पर हास चार्ज नहीं करती हैं, एकीकृत चिट्ठा तैयार कीजिए. दैट मीन्स यू हैव टू इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन बोथ ऑफ द कंपनीज. यू नीड नॉट टू कंसिडर डेप्रिसिएशन. ओके. नाउ आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, I think points arise in your mind is what to calculate first. Means these you have information of both the companies, and in generally what you do while consolidating, you just sum up the balances of both companies, P Limited and Q Limited. Generally most of the students, what they do, they just sum up figures of both the companies and write them in consolidated financial statement, which is not right, and the whole question goes wrong. Okay. So what to calculate first, you have to keep in mind these 4 things, because maximum questions involve these 4 points to be solved to get complete answer of complete balance sheet of consolidated balance sheet. Okay. Now first point is to calculate, remember these points for future reference also. Capital and revenue reserves and profit prior and post, means पहले भी और बाद में भी. You have to calculate capital profits and revenue profits prior and post, means before consolidation and after consolidation. यानी कि एकीकरण के पहले एवं बाद की स्थिति क्या है कैपिटल की, पूंजी लाभ की और रेवेन्यू की, वो आपको कैलकुलेट करनी है. ये सब हम जो कैलकुलेशंस मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये हमें वर्किंग नोट्स में शो करनी है. जो मेन सॉल्यूशन है वो तो आपका केवल बैलेंस शीट का ही होगा, मेन आपके बैलेंस शीट है. बाकी जो भी कैलकुलेशंस करनी है आपको सारी वर्किंग नोट में शो करनी है. सेकंड इज़ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. मिनॉरिटी यानी कि अल्पमत, वो शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 99,000 जो है पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है. तो इसका मतलब क्यू लिमिटेड के पास जो शेयर हैं उसमें से एक अधिक मेजर हिस्सा किसके पास है, पी के पास है. तो जो बचे वो अल्पमत, क्योंकि क्यू की जो सारी शेयर होल्डिंग है वो पी के पास नहीं है, कुछ दूसरों के पास भी है. तो जिनके पास कम है, जो बाहर के हैं, जो पी वाले हैं, उनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आप शो कर देंगे. लेकिन जो बचे हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप अल्पमत यानी मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट के नाम से आप उनको अलग से दर्शाएंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी में पी की कितनी होल्डिंग है, यानी क्यू लिमिटेड में पी लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है उसकी कितनी मेजॉरिटी है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, और जो बचे रहे हैं जो अल्पमत में हैं मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनका कितना इंटरेस्ट है. तो ये आपको बैलेंस शीट में अलग से शो करना है. एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कैलकुलेट मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व इन कंसोलिडेशन. मतलब एकीकरण के बाद होने वाला कंपनी की गुडविल की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, GOODWILL आएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व. तो आपको कैलकुलेट करना है कि कंसोलिडेशन के बाद गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे पॉइंट्स मैं आपको एक करके बताऊंगी. लास्टली यू हैव टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स, एकीकृत लाभ, यानी कि पी और क्यू में पी का कितना हिस्सा है वो ध्यान में रखते हुए, और अल्पमत मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है ये ध्यान में रखते हुए यू हैव टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स, एकीकृत लाभ. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन and we will calculate all these points step by step, and you have to calculate these points almost in every question. These are the basic steps of consolidated financial statements. Now let's move toward balance sheet. What you have to do is just make a balance sheet almost of
of one page, है ना. Your answer sheet you got in your exams are very large enough, sufficient for your writing. So you have to make balance sheet of almost one page. Make a format, write consolidated balance sheet of XYZ, जो भी लिमिटेड है ग्रुप का नाम आपके, like this. आपको सारी डिटेल्स लिख देनी है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लुक इनटू द क्वेश्चन and note down step by step each and every point in consolidated balance sheet, and in which point you have to calculate working notes, you have to carried out working notes. Do that first and afterwards write the final amount. ठीक है. तो पहले हम देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ. देखिए एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, वापस से बैलेंस शीट देख लीजिए. इसमें हमारे पास क्या है, पहले फर्स्ट वी हैव शेयर कैपिटल, तो हम भी शेयर कैपिटल लिखेंगे, फिर हम इश्यूड भी लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे. अब जो जो चीज़ों में कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करते चलेंगे और इन पॉइंट के अमाउंट्स के आगे हम लिखते चलेंगे. तो शेयर कैपिटल के बढ़ने या कम होने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. सो द अमाउंट ऑफ 50 लाख, दैट मीन्स जो आपकी शेयर कैपिटल है 50 लाख की, वो एज इट इज़ रहेगी, तो हम उसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे. अब नाउ वी आर मेकिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सो देयर ओनली वन कॉलम ऑफ अमाउंट. ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम जो बना रहे हैं उसमें पी और क्यू अब अलग अलग नहीं होंगे, इनका एक ही अमाउंट आएगा. एंड ये जो बैलेंस शीट बनाई जाती है ये कंसोलिडेटेड या होल्डिंग कंपनी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है. ठीक है. इक्विटी शेयर्स यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए 50 लाख के, ध्यान रखिएगा ये अमाउंट, मैं आपको आगे फिर रेफ़र करूँगी. इक्विटी शेयर इसमें से हमने इशू किए 24 लाख के. ठीक है, हम बिल्कुल कर देंगे. ये देखिए ये वाला अमाउंट भी आप ध्यान में रखिएगा 24 लाख के. नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 3,50,000. अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन से स्टार्ट करनी है, क्योंकि एकीकरण होने के बाद आफ्टर कंसोलिडेशन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट और रिजर्व चेंजेस किस तरीके से चेंज होगा वो हम कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं. तो फिलहाल आप ये 50 लाख और 24 लाख ध्यान में रख दीजिए. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सोल्यूशन. हियर इज योर बैलेंस शीट. आपने 5 लाख की कैपिटल थी, 10 रुपये के हिसाब से 50 लाख लिख दिया. उसमें से 2,40,000 में से आपने 5 लाख में से 2,40,000 आपने इशू किए हुए हैं, तो ये लिख दिया आपने अमाउंट 2,24 लाख. ओके. नाउ सेकेंड शेयर होल्डर्स फंड में ए शेयर कैपिटल इज कंप्लीट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपके क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, फर्स्ट इज़ कैपिटल रिजर्व एंड सेकंड इज़ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट. अब यहाँ पे जो हम वैसे तो P&L अकाउंट लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है तो यहाँ पे हम कौन सा जो नेम देंगे, हम टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और यू कैन राइट प्रॉफिट ऑन कंसोलिडेशन. तो ये आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, विच आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस स्लाइड. ओके. सो हाउ विल यू कैलकुलेट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टेप विच आई मैंशन. सबसे पहले आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स एंड प्रॉफिट निकालना है, यानी कि कंपनी का कंसोलिडेशन से पहले का और बाद की स्थिति क्या है लाभ को लेके, वो आपको कैलकुलेट करनी है. उसके बाद सेकंड आपको कैलकुलेट करना है मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. ठीक है, दो दो करके हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट से पहले हम कैपिटल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट निकालते हैं. एंड यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशंस इन योर वर्किंग नोट. सी हियर आर योर वर्किंग नोट्स. Now I am explaining you first point, statement showing classification of subsidiary company Q Limited and reserves and profits and capital and profits and reserves and revenue profits and reserves. Okay. अब आप देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कंपनी Q में P की कितनी होल्डिंग है. होल्डिंग कंपनी शेयर, होल्डिंग कंपनी कौन है यहाँ पे, P. कितने शेयर हैं P के पास, 99,000. Q के टोटल शेयर कितने हैं, 1,10,000. ये कहाँ से आए, ये आपको बैलेंस शीट से अमाउंट मिलेगा. कंपनी के पास 11 लाख की कैपिटल है, 11 लाख 10 रुपये के हिसाब से, तो उसके पास 1,10,000 शेयर है. तो इस 1,10,000 शेयर में से 99,000 टोटल शेयर जो है वो P लिमिटेड के हैं. ठीक है, तो इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंट मिलेगा 90%. दैट मीन्स P लिमिटेड इज़ होल्डिंग 90% ऑफ शेयर्स इन Q लिमिटेड. दैट मीन्स 10% इज ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर, यानी कि मिनॉरिटीज़ का अल्पमत अंशधारियों का कितना हिस्सा है, 10%.
ठीक है। अब ये दो चीज़ें आपके ऑलमोस्ट हर जगह अभी काम आने वाली हैं, तो आप इन दो फिगर्स को याद रख लिए। पी लिमिटेड इज़ 90% एंड मिनॉरिटीज़ आर 10%। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स प्रायर, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 के पहले का प्रॉफिट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, जो कि था 98,000, और पोस्ट एक्विजिशन बाद में, एकीकरण के बाद में क्या लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने हैं हमें। क्रेडिट बैलेंस पहले का क्रेडिट बैलेंस 98,000 दे रखा था। मैं आपको दिखाती हूँ ये बैलेंस में अमाउंट में कहाँ से लेके आई हूँ। ये देखिए वर्किंग नोट, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन की, ये दे रखा क्यू लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 98,000, ठीक है। यहाँ से ये अमाउंट मैंने लिया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी हमारे पास पहले कितना रखा था, 98,000 ये रखा, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, अभी ये अमाउंट हमें पता नहीं है, इसको छुपा दीजिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये पता है कि पहले हमारे पास 98,000 था, और जो बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को, ये बैलेंस हमारे पास 2015 को था। अब हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें हमने देखा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 2,22,000 का। तो इस 2,20,000 में से हम 98,000 हटा देंगे तो हमें 1,22,000 का अमाउंट पता चल जाएगा। यानी कि पहले हमारे पास 98,000 का प्रॉफिट था, और अब बाद में ऑनवर्ड्स आफ्टरवर्ड्स 31 मार्च 2016 को हमारे पास कितना है, यानी टोटल 220 है, उसमें से 98 पहले का है, तो इस साल का कितना हुआ, 1,22,000 कर दिया हमने यहाँ पे मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है आपकी क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई है, उसमें आपको रिवैल्यूएशन गिवन था प्लांट एंड मशीनरी का, यानी कि आपको कैपिटल प्रॉफिट्स, आपकी मशीनरी, आपका एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो इट मीन्स दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, हाँ। एडिशन और improvement, revaluation, if we have profit on revaluation of assets, it is capital profit. So you have to add this revalued money, revalued amount in P&L account along with P&L account. So here is you have plant and machinery of 13,95,000 and this amount is in your balance sheet of P limited, सॉरी Y लिमिटेड, क्योंकि Y लिमिटेड Q लिमिटेड की था कि उसका 20% बुक वैल्यू बढ़ गई है। तो 13,95,000 जो आपकी प्लांट एंड मशीन थी उसका 20% यानी कि 2,79,000 आप ऐड कर देंगे। अब बाद में कुछ नहीं है, आपको पहले ही ऐड हुआ था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन थी 15-16 की। तो जब आपने कैलकुलेट किया तो यू हैव 3,77,000 बिफोर एंड 1,22,000 प्रायर, सॉरी पोस्ट एक्विजिशन आफ्टर इट्स, ठीक है। दैट मीन्स अब इसमें से आपको यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इनटू 2 पार्ट, 1 इज़ ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सेकेंड इज़ ऑफ मिनॉरिटी, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का 90% शेयर यानी 3,77,000 का, इसका 90% हिस्सा ये है और इसका 10% हिस्सा ये है। सेम दिस थिंग वी विल डू विद पोस्ट प्रॉफिट्स। यहाँ पे आपको ये वाली मैं बात कर रही हूँ, इस वाली कॉलम की मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे आपको 1,22,000 जो है, आपको इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 इज़ इन 90%, 1,22,000 का 90% और उसका 10%, तो यहाँ पे 12,200 आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। दिस इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज of holding company in subsidiary company, and then you have to calculate its profits and reserves, and any additional information if there is in question you have to calculate that accordingly, and you have to obtain total of these capital and profit, and then you have to divide this profit into 2 part, that is holding company's part and minority shareholders part. Okay. Now after this you have to calculate minority shareholder interest based on these percentages. See, computation of minority shareholders interest in subsidiary company Q Limited. Net asset on the date of balance sheet, consolidated balance sheet is on 31st March 2016. Now you have to calculate minority shareholders interest, and how much interest does minority shareholders have? 10%. So you have to take out 10% from profits and from capital. See, 10% paid of capital of Q Limited. Now Q Limited had 11 lakh of capital, 10 out of its 10% is of minority shareholder, so you wrote 1,10,000. Okay, now 10% share in capital profits and reserve. How much capital profits and reserves it has, and you have to take out 10%, which you have calculated earlier. See, here you have calculated minority shareholders 10% interest of 37,200 and 12,200. Okay, in which this profit is,
it is in profit, capital profit. See, here is 37,700 and here it is in 12,200 in revenue, profits and reserve. This is capital, profit and reserve, and this is capital. Okay, now so minority shareholders who hold 10% of their holdings have 10% share in capital, which is 1,10,000, 10% in capital reserve and profit, which is 37,700, and 10% in revenue, profits and reserve, which is 12,100. So total of minority shareholder interest is 1,59,900, and you have to show minority shareholder interest in consolidated balance sheet separately. You have to mention their interest separately. Okay, so after calculating minority shareholder interest, what you have to calculate, गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन. ठीक है, कंसोलिडेशन यानी एकीकरण होने के बाद, होने पर, बाद नहीं, होने पर कंपनी को गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है. ठीक है, तो कंपनी के देखिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. कंपनी के शेयर्स कितने हैं क्यू लिमिटेड में, 11,40,000. ठीक है, बैलेंस शीट में से लिया है ये अमाउंट आपने. 99,000 का जो शेयर्स है कंपनी ने 11,40,000 में ख़रीदा. आइए मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन में. ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए 11 लाख, ये आपका क्वेश्चन है. मैंने ये पॉइंट यहाँ से लिया है, ये इन्वेस्टमेंट है. ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे का अमाउंट दिखाती हूँ, 11,40,000. ठीक है, तो ये 11,40,000 हमने यहाँ से लिए हैं. तो 99,000 के जो शेयर्स हैं, अब हम ये देखेंगे कि कंपनी को गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है. ये देखने के लिए हमें पी लिमिटेड का जो हिस्सा है, पी में से क्यू का जो हिस्सा है वो अलग करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो क्यू लिमिटेड के 11,40,000 हमने क्यू लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं. उसमें से क्यू लिमिटेड का कितनी, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया 11,40,000 का इक्विटी शेयर्स इन क्यू लिमिटेड. सेकंड पॉइंट इज प्रोपोर्शनेट शेयर्स इन नेट एसेट्स ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि नेट एसेट में क्यू लिमिटेड के हिस्से को हम हटाएंगे. क्यू लिमिटेड के नेट एसेट में कितना हिस्सा है, वही 90%, क्योंकि पी लिमिटेड 90% की होल्डिंग रखता है, तो वो हर चीज़ में अपना 90% क्लेम करेगा. और उसके कैपिटल, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व में हम क्या करेंगे, 90% अलग कर देंगे. अभी अमाउंट कहाँ से आएंगे हमारे पास, क्यू लिमिटेड के जो प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे वो है ना, जो क्यू लिमिटेड, क्यों मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ लेके चलती हूँ और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए क्यू लिमिटेड का जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे इसका जो कैपिटल है 11 लाख रुपए की, 11 लाख रुपए में से 90% जो है वो किसके हैं, क्यू लिमिटेड के हैं. उसी तरीके से प्रॉफिट एंड रिजर्व का जो हिस्सा है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट्स में, 3,39,300 का, ये देखिए यहाँ पे ये हमें इस वाले पॉइंट से मिल गया. तो इनको हम कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैलकुलेट करने में यूज़ लेंगे. ये देखिए यहाँ पे 9,90,000. ठीक है, 11 लाख का 90% यहाँ पे हो गया, क्योंकि पेड अप कैपिटल है. ये 90% हम किस में से ले रहे हैं, पेड अप कैपिटल में से, और 90% हम किस में से लेंगे, कैपिटल, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व में से, जो कि मैंने आपको बताया 3,39,300 हमने कैलकुलेट किया. इनका टोटल हुआ 13,29,300. तो इस 11,40,000 में से जब हम 13,29,300 जो कि पी का हिस्सा है वो हटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,89,300. ठीक है, अब ये क्या है, capital reserve on consolidated, that means excess of proportionate net asset over actual cost of 90% of equity shares in Q Limited. That means you have capital reserve. कमी नहीं है, कमी आती तो गुडविल आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, यानी 11,40,000 की जो इक्विटी शेयर्स हैं उसमें से जो एसेट, जो आपके नेट एसेट्स की होल्डिंग है ओवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, यानी 11,40,000 की तो आपके पास क्या थी, केवल इक्विटी शेयर्स थे, उनमें से नेट एसेट्स का हिस्सा कितना है, 90% के हिसाब से यहाँ पे 13,29,000. दैट मीन्स आपके पास अभी भी 189,300 एक्स्ट्रा है. दैट मीन्स दिस इज़ योर कैपिटल रिजर्व. ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगा रखा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है ओवर एक्चुअल कॉस्ट जो 90% के हिसाब से हमने निकाली उसके लिए, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व राइज होता है. इस तरीके से आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे. ये क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि ये सब बैलेंस शीट के टर्म है. हम लोग एकीकृत वित्तीय विवरण पत्र में बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं.
रिजर्व एंड सरप्लस आता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में आपने कर लिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस दो टुकड़ों में हमेशा रहता है, अल्पमत वालों का भी आपको दिखाना है तो आपको अल्पमत का भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो मेजर कंपनी है उसकी तो होल्डिंग्स हैं ही, वो तो आपको दिखानी है, साथ में जो दूसरे लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो भी तो आपको शो करनी है, इसलिए आपको मिनॉरिटी शेयर होल्डर भी कैलकुलेट करना है। तीसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको पता होगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व जैसी चीज़ें भी उसमें होती हैं, तो वो भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अगर है तो। और उसके बाद प्रॉफिट शो करते हैं हम, ये सब चीज़ें हमें बैलेंस शीट के आइटम से ही हम ले लेके, यानी ये क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सब बैलेंस शीट के टर्म से। तो ये देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, लास्ट वाला पॉइंट आपको दिख रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना रखा है, 3,50,000 बैलेंस शीट के हिसाब से। कंसोलिडेशन के दिन यानी 31 मार्च को हमारे पास 3,50,000 रुपये का प्रॉफिट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस 3,50,000 के प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे पी लिमिटेड का 90% का शेयर पोस्ट एक्विजिशन 1,09,800 का। ठीक है, ये कहाँ से आया 90% का प्रॉफिट, ये वाला पी लिमिटेड 90% शेयर इन पोस्ट, ये जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वाले में कैलकुलेट किया था 1,09,800। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड के कॉर्नर में दिख रहा होगा, इधर ही कहीं मैं आपको दिखाती हूँ अभी। 1,09,800 ये हमने पोस्ट और प्रायर एंड पोस्ट हमने जो कैलकुलेट किए थे वो आपका ये वाला हिस्सा है 1,09,800। अब इसको आपको यहाँ ऐड कर देंगे, यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आप दोनों के प्रॉफिट्स यहाँ पे लेंगे। तो पी लिमिटेड का तो कितना था 3,50,000, जो कि आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन है, हमने ले लिया 3,50,000 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये 3,50,000 हमने ले लिया। जस्ट इसके नीचे आपको पी लिमिटेड का 90% हिस्सा जो क्यू लिमिटेड में है वो मिलेगा। यानी हम कंसोलिडेटेड मतलब होल्डिंग कंपनी खुद का तो प्रॉफिट दिखाएगी ही, साथ में वो उसका क्यू लिमिटेड में कितना हिस्सा है वो भी वो शो करेगी। तो क्यू लिमिटेड में पी का कितना हिस्सा है 90% के हिसाब से 1,09,800 होते हैं, जैसा कि अब हमने कैलकुलेट किया था अभी कि एकीकरण के बाद कंसोलिडेटेड लाभ क्या होगा 1,09,800 का, जो कि हमने शो कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको बोलती हूँ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी, यानी सहायक कंपनी में जो होल्डिंग कंपनी है, सूत्रधारी कंपनी है, उसका जो हिस्सा है तो वो भी उसी का लाभ होगा, तो वो भी आप यहाँ पे जोड़ेंगे, तब आपका एकीकृत लाभ आ जाएगा। यानी आपको दोनों लाभ लेने हैं, सूत्रधारी का भी और सहायक का भी। तो सूत्रधारी कंपनी का खुद का लाभ तो आएगा ही, प्लस सहायक कंपनी में उसका जो लाभ है वो भी यहाँ पे जोड़ के आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यानी एकीकृत लाभ निकाल लेंगे, जो कि आपका यहाँ पे आया 4,59,800। स्क्रीन में राइट हैंड साइड पे बिल्कुल लास्ट वाला जो अमाउंट है ये आपका एकीकृत लाभ है, यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया मैंने आपको भी बता ही दिया फर्स्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग नोट्स कंप्लीट हैं। अब आइए चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ, इसका जो कि हमने खाली छोड़ दी थी। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक एक बैलेंस शीट का पॉइंट देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स तो पहले ही बता के यहाँ पे कंप्लीट कर दिए थे। रिजर्व एंड सरप्लस में अब आया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अभी हमने कैलकुलेट किया 4,59,800 का हमने मेंशन कर दिया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी अभी हमने कैलकुलेट किया 1,59,900 का, ये भी हमने यहाँ पे अलग से शो कर दिया। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मिनॉरिटी का आ गया 1,59,900, वो अमाउंट वहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। और टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो आपको यहाँ दिखेगा, मैं बता रही हूँ 4,59,800 का। ये देखिए बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे लिख दिया 4,59,800 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और मिनॉरिटी का 1,59,900। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आया था 1,89,300। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी दोनों की ऐड करके लिख देंगे। 7,50,000 प्लस 6,80,000, तो यहाँ पे 14,30,000 आ जाएगा। तो आपके टोटल हो गया यहाँ पे 46,39,000। तो आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कंप्लीट है। अब हम चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट में बोला था, एसेट में एक चीज़ आई थी कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है 20% से बढ़ गई है, तो आपको बढ़ा हुआ अमाउंट यहाँ पे शो करना है। तो पहले जो यहाँ पे 13,95,000 की मशीनरी थी, अब वो बढ़कर कितने की हो गई है, तो 13,95,000 प्लस 2,79,000 की जो 20% की उसमें बढ़ोतरी हुई थी वो, और 12,50,000 पी लिमिटेड की, तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे 29,24,000। करंट एसेट्स दोनों के हम यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे 17,15,000। ठीक है, ये 17,15,000
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका भी टोटल उस तरीके से 46,39,000 आ जाएगा। अब ये जो मैंने जितनी भी बातें बोली हैं ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन इन योर रजिस्टर while watching this video, और you can take screenshot of the question। यानी कि आप या तो स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को अपने पास रख लीजिए, उसको देखिए, या फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ये देखिए बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और आप खुद से सॉल्व करिए। आप वीडियो सुनते जाइए, सॉल्व करते जाइए, या फिर एक बार पूरा वीडियो शांति से सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, तब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल, और आपको ऐसे बोलने से समझ में कम और खुद प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। आई होप ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक समझ में आए। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। 20-20 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई हार्ड ऑन योर ओन। वीडियो सुन के आप खुद इसको देखिए। मैं क्वेश्चन आपको दिखा लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को खुद स्टेप बाय स्टेप जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं वो 4 पॉइंट्स देख के आप सॉल्व करिए। ये 4 पॉइंट्स मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर।